Good morning, everyone. So, let us begin our class. In the previous class, we have seen how to use frommeter function for some sequences that array function cannot use. All right, like dictionary and string functions. So, we saw one example which is shown over here. We saw this example. Wait a minute. This example was seen. Here they have given a dictionary with a key value pair of 1, 2, 3, 4, 5 with values A, B, C, D and E. So for creating a 1D array using frommeter function, what you are supposed to do, you are supposed to define a variable which is used over here AR5. Now creating an array, for that you need to define numpy dot frommeter function. So as we import np as numpy, so we can use np as well. So we have written np dot frommeter function, and whatever iterable sequence you need to use, that particular iterable sequence has to be selected. So this is a dict, which is this one, and data type has to be selected. So data type has been selected as int32. Once this is done, a frommeter function will create a array using all these values given in the key value pairs of this dictionary. So this was seen. You can see this example. After this, you can see the data type and item size. So that can be output as like this particular code. And if you want to see a specific index, so that can be seen using this particular code, that is print function ar5 was the name of that array, and ar5's fifth zero position index has to be seen, and third position index has to be seen. So zeroth position index would be this one, and the third position will be this one. So 1 comma 4 or 1 or 4 will be the output. So as you can see here, 1 and 4 is the output. And if you want to see the complete array, so you can simply print AR5. If you will print AR5, so you will get 1, 2, 3, 4, 5 as the output, as it was the key of that particular string dictionary value. Now similarly, in the same way, you can even use string values instead of dictionary values. So this is an example which is given over here, that is using a string value. Let us see. A variable has been defined, that is astr. This astr is having a value which is, this is gonna be fun. इसको अपन gonna be fun पढ़ते हैं, BEB पढ़ते हैं. This is gonna be fun. Now this is a string value. Now what you need to do is you need to create an individual element as an array. So now you cannot use array function for this because it will say too many indices. That kind of error will be occurred if you use array function. So instead of array function, what function we are going to use? We are going to use frommeter function. This frommeter function, what it will do, it will individually, all the iterable values will be individually selected, and that will be the element that can be created using frommeter function. So for writing this, what we are supposed to do, let us see. We are defining another variable, that is AR6. AR6 variable has been defined. This AR6 variable, once it is defined, then you have to create frommeter function. Frommeter function will be created using np.frommeter function. Now np.frommeter function has been used. Now iterable sequence has to be given. So iterable sequence is astr, which is this. This is gonna be fun. All right. And you have to define a data type as well for this. So the data type that we are selecting right now over here is d type is equals to u2. U defines Unicode, and 2 defines that maximum 2 characters can be inputted in each element. All right, maximum 2 characters can be inputted. Right now we are inputting single element for this, so it will be inputting single element, but maximum 2 elements can be defined because you have given the data type name as u2.
Okay, if you would have given the data type name as u4, so maximum of 4 characters can be defined in each element. मैक्सिमम है ना, एटलीस्ट तो 1 है ही, मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर u2 डिफाइन किया था. अब जब हम इस कोड को लिखते हैं, as soon as we write this code and try to get output of this AR6, so you have to use this print function. As soon as you use this print function, you can see the output that it is generating. T is individual element, H is individual element. Similarly, each and every character of this is gonna be fun string has been converted to a single element of that particular array. Now again, if you want to extract a single index, so you can do by indexing. So how you can do indexing? You have to use print function. AR6 is the name of the variable, so it is written AR6. 0th index has to be calculated, 4th index has to be calculated, and 9th index has to be calculated. So 0th index will be the simple this one, and what will be the 4th element? The 0 1 2 3 4. So this will be your 4th element. Then 9th, 4 5 6 7 8 9. So this will be your 9th element. So you can see these output should be T, capital I and N. So you can see over here the output is the same, T, capital I and N. So this way Frommeter function can be used on strings as well. Alright, let us see some below examples what they are giving us. Let us read the theory which is given. The Frommeter function can work with all types of iterables, be it list or tuple or list comprehension. The method of using Frommeter function is the same. Specify the iterable name and dtype as required arguments. सो यहाँ पर ये लिस्ट के साथ, डिक्शनरी के साथ, टपल के साथ, स्ट्रिंग के साथ, सबके साथ यूज़ किया जा सकता है. सिंपली आपको क्या करना होता है, इटरेबल वैल्यूज़ क्या है, वो इटरेबल वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है. फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन अस सम वैल्यूज़. एक ए लिस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, एक टपल का एग्जांपल दिया हुआ है और एक लिस्ट 2 का एग्जांपल दिया हुआ है. तीनों को थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ पर आप देखो ए लिस्ट जो दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं ABCDE. जो ए टपल दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज़ है 1.5 2.5 3.5 4.5. और एक और तीसरा एक इन्होंने लिस्ट 2 बनाई हुई है, उसको देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है. यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया हुआ है. लूप हम ऑलरेडी जानते हैं, लूप क्या होता है, रिपीटिंग वैल्यूज़ का, इटरेटिंग वैल्यूज़ का सेट होता है. उसकी रेंज यहाँ पर दी हुई है. तो देखो यहाँ पर फंक्शन क्या लगाया है उन्होंने, a इंटू 2 - 3 फॉर a इन रेंज 2,6. मतलब 2 3 4 5 है ना. 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6 एक एंड वैल्यू है तो 6 को काउंट नहीं करते हैं. तो 2 3 4 5 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको एक आउटपुट जनरेट करना है. तो सबसे पहले समझते हैं फॉर ए इन रेंज 2,6. तो पहली वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 2. 2 इंटू 2 क्या होगा 4. 4 में से क्या माइनस करना है 3, तो आपका आउटपुट क्या आया 1. ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1. 1 के बाद लगाते हैं कॉमा. अब 2 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी 3. तो 3 इंटू 2 होगा 6. 6 माइनस होगा 3, तो आउटपुट क्या आएगा 3. तो अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3. आगे बढ़ते हैं. अब 3 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी 4 होगी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 4. 4 2 8, 8 माइनस 3, 4 2 8, 8 माइनस 3 5. तो हमारी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 5. और नेक्स्ट क्या रहेगा 4 हो गया 5, लास्ट वैल्यू जो है 5. 5 इंटू 2 हो जाएगा 10. 10 माइनस 3 हो जाएगा 7. अब अगली वैल्यू 6 तो होगी नहीं क्योंकि 6 एंड वैल्यू है, तो एंड वैल्यू काउंट होती नहीं है ना. तो यहाँ पर 2 3 4 5 का यूज़ करके हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया वो क्या आया 1, 3, 5, 7. तो ये एक हमारी लिस्ट बन गई जिसमें ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए. आई होप आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा. एक बार और समझ के देखना, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर फिर से पढ़ के समझ के देखना, आप लोग समझ जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ़ यू क्रिएट ND arrays फ्रॉम ईच ऑफ द अबव इटरेबल यूजिंग फ्रॉममीटर फंक्शन, यू कैन ईजिली डू इट.
अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पर उस तीनों पे फ्रॉमीटर फंक्शन लगाकर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल, ND1 इज इक्वल्स टू NP डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन। अब NP डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन में ए लिस्ट का यूज़ किया है और ए लिस्ट क्या है हमारी, ये है, ठीक है, ये दी हुई है ए लिस्ट, तो ए लिस्ट पे यूज़ किया है और U1 डेटा टाइप दिया हुआ है। U1 का मतलब क्या हुआ, यूनिकोड वैल्यू आएगी और कितनी वैल्यूज़ हो सकती है हर एक एलिमेंट के अंदर, 1 वैल्यू है ना, U1 लिखा है मतलब एक एक ही वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और ND1 की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, जब ND1 की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो जो आउटपुट हमको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। एरे, क्या एरे बन जाएगा, ABCDE और डेटा टाइप क्या है उसका, U1। तो ये सिंपली एक आपको आउटपुट प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ND2 इज इक्वल्स टू NP डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन। अब फ्रॉमीटर फंक्शन किस पे लगा, ए टपल पे, तो ए टप क्या है आपका 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। इस पे आपने डेटा टाइप क्या दे दिया, U1। अब देखिए फिर से आपने डेटा टाइप क्या दिया है, U1, मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, ओनली 1 कैरेक्टर इसके अंदर आ सकता है। जबकि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 1 एक कैरेक्टर है, पॉइंट एक कैरेक्टर है, 5 एक कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर्स हैं। पर आपने क्या बोला, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने बोले, U1। तो देखो इसका जो आउटपुट जब आप जनरेट करने की कोशिश करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, एरे, और एरे के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, 1, 2, 3, 4। क्यों, क्योंकि आपका जो डेटा टाइप था वो U1 था। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तीसरा जो दिया हुआ है वो है NP डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन ND3 के लिए। यहाँ पर list2 लिया हुआ है। list2 हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का आउटपुट है 1357। अब 1357 पे आपने लगाया है इंटीजर फंक्शन, तो सिंपल है, आउटपुट वही का वही आना है, बस यहाँ पर डेटा टाइप भी उसके बाद लिख दिया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको फ्रॉमीटर फंक्शन को यूज़ करना बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, इन्होंने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा लिया। बट अगर आपको ऐसा कुछ करना हो, अभी आपने देखा था जब हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे ये काउंट नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है जो यूज़ किया जा सकता है। काउंट क्या करता है, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको रीड करने हैं वो बताता है। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर रेड, तो सारे एलिमेंट्स रीड किए जा सकते हैं। बट अगर हमको ऐसा नहीं करना हो, सारे एलिमेंट्स रीड नहीं करना हो, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, वी विल बी पिकिंग अ स्मॉलर सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ सीक्वेंस यूजिंग फ्रॉमीटर फंक्शन। अब जब आपको पूरे के पूरे वेरिएबल में से, पूरे के पूरे एक स्ट्रिंग में से या एक टपल में से या डिक्शनरी में से या लिस्ट में से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही आपको अगर सीक्वेंस में चाहिए है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा काउंट नाम का एट्रीब्यूट। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस, चलिए इसको पूरा ही रीड कर लेते हैं। सो you can see that frommeter function you can create ND array from any iterable sequence. Function frommeter function also supports one more argument called count, using which you can put a limit on how many elements from the iterable are to be picked for the ND array, है ना। एक ND array में से कितने एलिमेंट्स पिक करना है वो भी डिसाइड किया जा सकता है, वो भी अपन पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एक आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं काउंट। फॉर इंस्टेंस, फ्रॉम अ बिग स्ट्रिंग इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन ND array विथ 10 लेटर्स यू कैन स्पेसिफाई एडिशनल आर्ग्यूमेंट काउंट इज इक्वल्स टू 10। अगर एक बहुत बड़ा आपके पास एक क्या कह सकते हैं आप, एक स्ट्रिंग है और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से आपको सिर्फ 10 एलिमेंट्स का ही अगर आपको सेट निकालना है, तो आपको वहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू 10 नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बताया है, जो पिछले पेज पर एक ASTR नाम का वेरिएबल था ना, पिछले पेज पर देखिए ये जो एग्जांपल जिससे अपन ने आज की क्लास शुरू की थी, यहाँ पर ASTR, दिस इज़ गोना बी फन, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने उसी एग्जांपल को यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ गोना बी फन, जो आपका एक ASTR नाम का वेरिएबल है। इसमें अपन देखते हैं पहले कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है। दिस में 4, इज़ में 2, गोना में 5, बी में 2, फन में 3, इन सबको जोड़ते हैं, 4 + 2 6,
6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16। टोटल यहाँ पर 16 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। टोटल आप लोगों के पास यहाँ पर 16 एलिमेंट्स है। इन 16 एलिमेंट्स में से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 एलिमेंट्स ही यूज़ करना है। 16 में से 16 की बजाय आपको सिर्फ 10 एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। तो आप क्या करेंगे, कोड में क्या लिख देंगे, काउंट इज इक्वल्स टू 10। जब आप काउंट इज इक्वल्स टू 10 लिख देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को रीड नहीं करेगा, सिर्फ 10 एलिमेंट्स को रीड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने 11 एलिमेंट्स के लिए इन्होंने इसको यूज़ करके बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको 11 एलिमेंट्स रीड करना है तो देखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको समझना आप लोग। AR7 नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, np.array फंक्शन, np.frometer फंक्शन तो लगेगा। उसके बाद ASTR क्या है आपका, दिस इज गोना बी फन। डेटा टाइप आपने क्या ले लिया, U1, मतलब एक यूनिकोड वेरिएबल जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया जाए, और काउंट की वैल्यू ले ली आपने 11। मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स अब नहीं आने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ 11 एलिमेंट्स ही आएंगे। और आप देखें, अगर इसको आप प्रिंट करेंगे AR7 को और एंटर प्रेस करेंगे तो जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा। इस आउटपुट में देखते हैं हम कितने वेरिएबल्स, कितने एलिमेंट्स इसने यूज़ करे हैं। पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपने काउंट की वैल्यू 11 पास की तो इन्होंने सिर्फ दिस इज गोना बी फन जो था वो बी फन यहाँ पर रीड नहीं हुआ है, क्योंकि आपने काउंट की वैल्यू 11 दे रखी थी। अगर आप इसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू 12 देते तो गोना के बाद बी, सिंगल लेटर बी भी काउंट हो जाता है ना। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल वेयर ओनली 3 एलिमेंट्स आर टू बी टेकन फ्रॉम एडिक्ट। एक एडिक्ट नाम का वेरिएबल आपके पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये 5 की वैल्यू पेयर्स हैं, 1A 2B 3C 4D 5E। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स के काउंट को ही निकालना है तो आप क्या करेंगे, AR8 अपन ने यहाँ पर ले लिया, np.frometer फंक्शन तो लगता ही है। इटरेबल वैल्यू क्या है हमारे पास, इटरेबल वैल्यू है हमारे पास एडिक्ट, तो एडिक्ट लिख देंगे। डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टाइप हमने ले लिया np.int16, हमने मतलब इंटीजर वेरिएबल लिया है यहाँ पर, और उसके बाद काउंट की वैल्यू दे दी 3। जब हम काउंट की वैल्यू 3 देंगे और AR8 को रन करने की कोशिश करेंगे तो जो आउटपुट दिखेगा वो दिखेगा 1 2 एंड 3, 4 एंड 5 विल बी एलिमिनेटेड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और न्यूमेरिकल रेंज के लिए एक फंक्शन यहाँ पर बताया हुआ है, उसको देखते हैं ये क्या होता है। क्रिएटिंग ND array, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, creating ND array with range, numerical range using arange function। ए रेंज फंक्शन का यूज़ करके, सॉरी वो पेज आगे निकल गया है, मैं उधर आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर ए रेंज फंक्शन का यूज़ कर ND array क्रिएट करना भी यहाँ पर बताया हुआ है। रेंज फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अभी भी एक एग्जांपल अपन ने देखा जिसका आउटपुट 1 3 5 7 आ रहा था, वहाँ पर भी यूज़ किया था A × 2 - 3 फॉर A इन रेंज 2, 6, है ना। तो वो एक रेंज फंक्शन है जो फॉर लूप के साथ जनरली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एरे के साथ रेंज यूज़ करना है तो यहाँ पर फंक्शन का नाम हो जाता है ए रेंज फंक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम क्या है, ए रेंज फंक्शन। ये ए रेंज फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। द ए रेंज फंक्शन इज सिमिलर टू पाइथन्स रेंज फंक्शन बट इट रिटर्न्स एन ND array इन प्लेस ऑफ पाइथन लिस्ट
रिटर्न्ड बाय रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटी एरेज की वैल्यू रिटर्न होती है, वहाँ पर जहाँ पर पाइथन की लिस्ट रिटर्न होती थी, यहाँ पर एंटी एरे की वैल्यूज़ रिटर्न होती है। इन अदर वर्ड्स द ए रेंज फंक्शन क्रिएट्स नमपाई एरे विथ इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विथ स्पेसिफिक न्यूमेरिक रेंज। यहाँ पर आप अगर कोई रेंज देते हैं, जैसे मैंने 1 से लेकर 5 तक के वेरिएबल्स दे दिए और मुझे उसमें 10 एलिमेंट्स चाहिए हैं, तो वो मुझे 10 एलिमेंट्स वहाँ पर काउंट करके बता देगा। आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा अपन समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल यूज़ करके बताया। इसका पहले तो सिंटेक्स देख लें। एरे का नेम आपको बताना पड़ता है। एरे नेम बताने के बाद numpy डॉट ए रेंज, स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन, और उसके बाद उसकी कितनी डी टाइप क्या होगा वो डी टाइप आपको बताना होता है। देखते हैं अपन यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर ARR5 नाम का एक वेरिएबल इन्होंने ले लिया, इस पर लगा दिया np डॉट ए रेंज और 7। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं है ये 7, जो 7 है ये स्टॉप वैल्यू है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर अगर ARR5 के अंदर 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको टोटल क्या करने थे, टोटल 7 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, मतलब 6 एलिमेंट्स, 7 लिखा है मतलब 6, 0 से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 मतलब दिया हुआ है, तो ये 7 के 7 एलिमेंट्स की इसने यहाँ पर काउंट किए हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसका डेटा टाइप पता करना था, तो आपने लगा दिया यहाँ पर फंक्शन ARR5 डॉट डी टाइप। ठीक है, जब आपने ARR5 डॉट डी टाइप लगाया तो आउटपुट में क्या आ गया, डी टाइप क्या है इसका, डेटा टाइप क्या है उसका, INT32। एक और एग्जांपल दिया हुआ है ARR6 के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ARR6 में इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग रेंज भी दी है, एंडिंग रेंज भी दी है, और 2 का स्टेप भी दिया हुआ है कि 2 के डिफरेंस पे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और फ्लोट वैल्यू है ये। तो यहाँ पर आउटपुट देखो क्या हो गया, 1 से लेकर 7, तो 1 से लेकर 7 तो काउंट होगा नहीं, मतलब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ को 2 की स्टेप में काउंट करना है, मतलब एक को स्किप कर करके लिखना है। तो 1 तो आएगा, 2 स्किप हो जाएगा, 3 आएगा, 4 स्किप हो जाएगा, 5 आएगा, 6 स्किप हो जाएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर रेंज दी हुई थी तो 7 काउंट नहीं होगा, मतलब आउटपुट आएगा 1 3 5। बट एक और बात समझो, यहाँ पर INT नहीं दिया था, फ्लोट दिया था, तो आउटपुट देखो इन्होंने क्या जनरेट किया है, 1.3.5. यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका आउटपुट जनरेट होकर आया है। एक और फंक्शन होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लाइन स्पेस फंक्शन। ये लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, रीड करते हैं। समटाइम्स यू नीड इवनली स्पेस्ड एलिमेंट्स बिटवीन 2 गिवन लिमिट्स। For this purpose, NumPy provides line space function to which you provide the start value, the end value and the number of elements to be generated for the end array. इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका पहले आप सिंटेक्स देख लीजिए। एरे का नाम देना है numpy डॉट लाइन स्पेस फंक्शन, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और कितनी वैल्यूज़ उसके बीच में जनरेट करनी है वो। एक एग्जाम्पल सिंपल, यहाँ पर देखिए ARR1 नाम का एक वेरिएबल है, उसमें इन्होंने numpy डॉट लाइन स्पेस फंक्शन लगाया। इस लाइन स्पेस फंक्शन पे इन्होंने लिखा है 2 से स्टार्ट करना है, 3 पे एंड करना है, और 2 और 3 के बीच में आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए हैं, 6 एलिमेंट्स चाहिए हैं, है ना। मतलब कि यू हैव टू जनरेट 6 एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ 2 to 3। तो अब जब 2 से 3 के बीच में आपको 6 एलिमेंट्स जनरेट करना है, तो ये कुछ ना कुछ फार्मूला लगाकर यहाँ पर इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए जितने से भी डिवाइड करना होगा, वो उसको डिवाइड कर कर 6 वैल्यूज़ आपको 2 से लेकर 3 के बीच में इन थोड़ी, मतलब कि एक स्पेसिफिक दूरी, स्पेसिफिक डिफरेंस वाली वैल्यूज़ जनरेट करके देगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है A1 में क्या वैल्यू दी है, np डॉट लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस फंक्शन लगाया, 2.5 से लेकर 5 के बीच में 6 वैल्यूज़ जनरेट करनी है। अब देखिए A1 का आउटपुट निकाला तो 2.5 3 3.5 4 4.5 5, तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ जनरेट कर दी इसने 2.5 से लेकर 5 के बीच में। ठीक है, अगला A2 वेरिएबल लिया, उसमें 2.5 से 5 के बीच में 8 वैल्यूज़ जनरेट करनी थी।
जब 8 वैल्यूज़ जनरेट करनी थी, आपने A2 को प्रिंट किया तो पहली आई 2.5, दूसरी आई ये, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला यूज़ के एक स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ आप लोगों को उतनी वैल्यूज़ ये यहाँ पर प्रिंट कर कर बता देगा। ऑलराइट, सो आज जो आपने पढ़ा है ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आपको इतना जो आज पढ़ा है इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिख जाएगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार वो PDF को ज़रूर से रीड करना, और रीड करने के बाद समझना। और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूर से समझिएगा, ज़रूर से देखिएगा। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा 2 डायमेंशनल नंपाई एरेस कैसे क्रिएट करते हैं वो। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।